Sir, you are live now. Okay, thank you. Okay, good afternoon, all the students present here. Today I am going to take your class on alternative source of energy and most of the energy resources which are renewable. In the last class, we are discussing about what kind of resources available and what kind of natural resources available, and what is the basic difference in between renewable and non-renewable energy resources. Okay. Okay, so just see here. What are the renewable energy resources? As you know, the resources of the energy can be regenerated and again we called as the renewable energy resources. In the last class, we discussed about this in detail. Okay, so and I am repeating again some of my words which I told you in the last class, that what are the non-renewable, the energy resources which cannot be regenerated again and again as fossil fuel. These kind of energy resources can be generated in a very long span of time, which is not possible for us kind of human or Homo sapien. जैसे कि हम पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं, a lot and long time is required to produce these kind of energy resources. Okay, so now what we are using continuously non-renewable sources of energy. Okay, so the demand of renewable source of increasing day by day. Okay, so what we have to do, we have to see some of the alternative sources which we can use for our future generation and which can be renewable. ठीक है, ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज को हमको फाइंड आउट करना है और यूज करना है जो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज हो और हम ज्यादा से ज्यादा उसको यूज कर सके. ठीक है, तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इन फर्स्ट स्लाइड यू कैन सी हियर अबाउट द विंड पावर, रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, विंड पावर क्या है? You can see here a wind turbine which have tower, nuclei containing generator, probable blade. When air rotates the blade, the energy generated will be captured in the generator. Okay, or turbines in prevailing wind direction. Basically, turbines flow or rotate in the prevailing wind direction. तो जैसे जैसे वो direction होता है, I am taking here most of the example related to developed countries like US, UK, Germany, Iceland, etc. because they have lot of these kind of resources and they are using a lot, because in India is a developing country. Okay, so examples are very few, so I am taking here the examples of the developed countries, how they are using this kind of energy, and then you can think about the estimate if in India we are using this kind of energy, what we have to do and what kind of mechanism behind this. Okay, to understand this. Okay, so we don't go in the very deep related to some formula, etc. You just have to know about what is the fundamental behind this. Okay, the amount of hour and therefore electricity a wind turbine can produce largely based on wind velocity using the equation. Okay, so this is something about the wind energy. So in UK, as you can see here, 20.1 gigawatt, 6th largest producer of wind power in the world, UK, for UK. Okay, so you can think about how much amount of energy, electricity and energy they are producing from the wind. Okay, in 2017, 17% of UK electricity was generated from wind power, 29% by the renewable in total. That means about around 50% of the energy is generated from the renewable source. But in India, for India, what we are using, coal is the biggest source for the electricity production. और अभी भी इंडिया में non renewable resources का frequently use किया जा रहा है. Okay. So second is solar power. Sorry, let me. Second is solar power. I need some water. Second is solar power. Solar power आप यहाँ पे देख सकते हैं, जर्मनी का पावर प्लांट दिया है, उसमें है कि how कैसे वो लोग how they are producing solar energy. Okay, solar thermal power plant में क्या होता है? Basically they have a photovoltaic cells where N type and P type of silicon chips are
given, which convert the energy of sun into the electricity by the electrons, okay, by reproducing electrons. So 3.4% of the total electricity was generated by solar photovoltaic cell in the UK in 2017, 29% by the renewable total. So a lot of amount of energy is also produced from the solar energy. In India, we have a plenty of sunshine in the summers. Okay, so we can use this kind of energy, and government is also giving some subsidy if we purchase any solar equipment for the energy generation, electricity generation के लिए या फिर हम खाना बनाने के लिए सोलर कुकर की बात करते हैं, सोलर पैनल की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उस पर. इंडिया में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है. सब्सिडी इसलिए देती है सॉरी ओके, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है. सब्सिडी देने से क्या होता है कि उसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा. तो वो जो हमारा डिपेंडेंसी है, अभी हम गैस पे वी यूज कॉन्टिन्यूसली एंड फ्रिक्वेंटली गैस. कौन सा गैस यूज करते हैं? सीएनजी, सोलर सीएनजी करते हैं, या फिर हम जो गैस हमारे यहाँ पे आता है आईजीएल के थ्रू आता है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, और डिपेंडेंसी कम होगी तो हम डिपेंड होंगे सोलर के ऊपर या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर. ओके, सो दिस इज, ये आपको लिटिल बिट बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिलेबस में नहीं है. सिलेबस आपका जो कवर कर रहा है केवल क्या है आपको पता होना चाहिए, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, सोलर का देखो यूके में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं वो लोग. यूके दे आर यूजिंग अ लॉट ऑफ सोलर एनर्जी इन यूके. ठीक है, second is geothermal. In the last class so many students asked me about what is geothermal energy. So say here how the geothermal energy is reproduced. Geothermal energy is produced by using the hard rocks or the area where the volcanoes are formed. यहाँ पे volcano होती क्या होता है वहाँ पे? Crust, you learned about the crust mantle core in, I hope, in the first class. Okay, this is the part of the lithosphere. Lithosphere में जो upper part होता है, outermost part of the earth is called as a crust, and innermost part is called as the core. जहाँ पे hard lava निकलती है तो वहाँ पे volcanic eruptions होता है कहीं पे. ठीक है, तो वहाँ पे ये यूज होता है. अब देखो how the geothermal energy is reproduced. Heat energy from the earth, decay of radioactive elements and residual heat from planetary formation 4.5 billion years ago. जब हमारा प्लैनेट बना था तो उसके अंदर ये जो कोर है, कोर जो हॉट हो गया है, क्यों हुआ है? प्लैनेटरी फॉर्मेशन हो रहा था तब हुआ था. ठीक है, वाटर इज फॉर्म डाउन इनटू अ हॉट रॉक वेयर इट इज हीटेड. ठीक है, स्टीम कैन देन बी यूज्ड टू हीट बिल्डिंग्स डायरेक्टली और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय स्पिनिंग अ टरबाइन. ठीक है, ओके, अभी क्या होता है, अब देखो मैं मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू शो इन द नेक्स्ट slide what is the mechanism behind generating electricity from the geothermal energy. Just see here there is a volcano, and in beneath the volcano the rocks are hot due to spontaneous eruption and ejection of the lava. Okay, so the cold water is injected there and water is heated and water is converted into the steam, and when steams, you just see my cursor, when the steam comes outside the turbines move, and due to the movement of the turbine electricity is generated and captured by the generator. Okay, and this electricity will move to the power stations for our use, and this water and this steam, when after the cooling of this steam, this water is again used for the electricity generation. You can see here there is a volcanic eruption and cold water is going here, water is heated and hot water in the form of steam is ejected outside where the turbine is fixed, and the movement of the turbine the generator reproduce electricity. So this is the basic concept and funda behind the geothermal energy production. ठीक है, जिसको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन आंसर सेशन में लिखना, मैं अभी फिर से लेता हूँ आप लोगों को. ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन में देखता हूँ क्या यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज्यादा जियोथर्मल एनर्जी को यूज कर रहा है, 20% ऑफ द यूके डिमांड. तो डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं हमारी, दे आर यूजिंग अ लॉट ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बट जो हम डेवलपिंग है, जो डेवलप्ड है वो तो रिन्यूएबल को कर रहे हैं, बट we the developing countries are basically depend on the non-renewable sources of energy. Okay, another is hydroelectric power or hydropower. I discussed earlier in the last class
टरबाइन से जब पानी गिराया जाता है तो क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है. जस्ट सी हियर द रिजर्वायर ऑफ वाटर. आई एम शोइंग यू नेक्स्ट स्लाइड एंड आई कम बैक अगेन. जस्ट सी हियर द वाटर, दिस इज अ नेचुरल पॉन्ड. ओके, द वाटर जहाँ पे बारिश होता है या कुछ भी होता है, इससे सारा का सारा वाटर यहाँ पे आता है. ये स्कॉटलैंड में है, ठीक है, पावर स्टेशन. तो यहाँ पे एक डैम बना दिया इन्होंने, ठीक है. एंड देयर इज generators are fixed here in the gate of the dam. When they want, they can open it and the water will flow from upward to divert direction due to gravity of water creates. यहाँ पे हम generator लगाएंगे. The movement of the generator or the movement of the turbines will generate energy and energy is captured by the generator और उसको हम use करेंगे अपने electricity production के लिए. This is a big and good example. In India and in most of the cases we usually divert flow direction of the rivers. हम रिवर्स को कैप्चर करके बनाते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि ये नेचुरल एक पॉन्ड था स्कॉटलैंड में और यहाँ पे जितना भी बारिश का पानी होता है और पानी होता है सब इसमें आके बह जाता है, कैप्चर हो जाता है, ठीक है. बट इन इंडिया ऐसा ही कॉन्सेप्ट है बनाने का. सो दे आर डूइंग लाइक दिस. हाँ, दे प्रोड्यूस अराउंड 705 गीगावाट GWH पर ईयर. इतना एनर्जी ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड कैन हार्म वाइल्ड लाइफ. देयर इज सम नेगेटिव पॉइंट जो कि जियोथर्मल और उसके साथ नहीं था. Every kind of activity related to humans, some positive and negative points. Some have some kind of machinery have more benefit in comparison to negative points. So hydropower have some negative point like expensive. When we construct any dam in any reservoir in any river, so sure there will be little bit the flow direction will change, and if the flow direction will change, then the ecosystem, water ecosystem or that particular pond or particular river will be affected. तो उधर पे अगर बाय द वे पानी के फ्लो में बहुत से रहने वाले जो फ्लोरा एंड फना है वो एक जगह पे स्टक हो गए, बहुत सारी चीजें होती हैं, केमिकल्स उनको नहीं मिला या उनको सर्वाइव करने के लिए जो कंडीशन वो नहीं मिली, वो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है. और 1.5% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक इज सीन इन द यूएस. यूके बहुत ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे अभी बेस कर रहा है, ठीक है. बायोफ्यूल्स क्या है? वी हर्ड अबाउट दिस so many times that we are using fossil fuels. Fossil fuels हमारा पेट्रोल कोल डीजल है, okay. But right now we are going to develop some discuss about the biofuels. Biofuels are basically produced from some oil bearing or ethanol bearing plants, okay. जैसे हमारा सुगर केन है, इथेनॉल बेयरिंग प्लांट है. बायोगैस, बायोडीजल में क्या आता है, बायोइथेनॉल में क्या आता है? यू कैन सी बायोइथेनॉल यूज्ड एज अ फ्यूल एंड एज अ पेट्रोल एडिटिव टू इंक्रीज ऑक्टेन एंड लोअर कार्बन इमिशन. इस फॉर्म में यूज होता है, ठीक है. Where biodiesel related with the some specific biofuel oil bearing plants like Jatropha carpus, Dracaena communis, Azolla microphylla. This is a water loving plant, and Jatropha and Dracaena are terrestrial plants, okay. इनका जो फ्रूट होता है, फ्रूट में जो सीड्स निकलता है वो ऑयल बीयरिंग होता है, जिसको कि हम अपने व्हीकल को चलाने के लिए जेट्रोफा के बारे में सबने सुना हुआ है कि जेट्रोफा से बायोडीजल निकलता है, ठीक है. ओके, सो दिस इज द बेसिक अबाउट बायोफ्यूल. यूके में व्हीट एंड कुकिंग ऑयल को भी बहुत ज्यादा बायोफ्यूल में यूज किया जा रहा है, ठीक है. वेस्ट में प्लांट वेस्ट कैन बी यूज्ड एज अ बायोफ्यूल लाइक बगास. आप बगास जो होता है ना, जैसे गन्ने का जब पूरा निकाल लिया जाता है मटेरियल, तो उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो व्हाइट कलर का, that is called bagasse. That is used also as a source of energy, okay. You can see the estimate how much of the biofuel energy is used continuously in the UK and all over the world. आप समझ सकते हो कि in 2016 93,000 EHA were used for biofuel hectare, where 41,000 hectare of this was to grow wheat. If we compare with India, most of the land
is used for the production of wheat and rice and some pulses. But in UK, USA, and Germany, Japan, and in some developed countries, these kind of biofuels are grown maximum in comparison to wheat, rice, etc. Because they want more and more energy, and they are producing also. हमारा जो demand है basically we depend on the wheat, rice, and pulses, etc. Because our population is increasing day by day. We don't have any control of this. But all the developed countries have some specific rules for our citizens. ठीक है, तो उधर भी क्या है कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज ज्यादा नहीं होगा तो उनके पास ये सारी फैसिलिटीज हैं करने के लिए. ठीक है, एथिकल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज कुछ आते हैं. ठीक है, so just see about some of the case studies as Iceland, Costa Rica, Brazil, and some of the developed countries like China, Japan, South Africa. They are using these kind of biofuels a lot as a renewable source of energy. इधर पे देखिएगा कुछ एग्जांपल है, आइसलैंड का एग्जांपल है. बहुत सारी हॉट रॉक्स आइसलैंड में यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसको यूज किया जाता है. %85% of the Iceland heating and 27% of the electricity comes from geothermal energy. Just see the estimate how much amount of geothermal energy and renewable source of energy Iceland is using. 70% of the Iceland electricity comes from hydropower. Still, dependence on fossil fuel for ships, cars, and buses actually are the highest emitters of the carbon dioxide per capita. Okay, you should know that if we are using the non-renewable sources like fossil fuels, the carbon emission will be increased. As we are using automobiles means car, buses, and bike, etc. So if we use petrol and diesel, then sure some more amount of carbon dioxide and some hazardous gases will be emitted. And these kind of primary pollutants will go into the atmosphere and combine with the other gases and make secondary pollutants which affect plants and animals as a acid rain or any kind of other terms. Okay, so अगर हम यहाँ पे इथेनॉल का यूज करते हैं, if we use biodiesel, then the carbon dioxide emission will be low. Carbon dioxide emission will be very low. Okay. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन लो होगा, so you know कि कार्बन डाइऑक्साइड produce a warming effect which is called as a global warming because it captures and absorb the heat of the sun. और क्या करता है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में रहता है, and the earth's surface gets heated by a phenomenon that is called as a global warming. And if the global warming increases, the melting of glacier occurs, and lot of consequences happen one by one. Okay, so this kind of climate change, this will help renewable source of energy definitely help to control the climate change and produce a environment friendly atmosphere or biosphere. Okay, तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कम कर देंगे तो श्योर कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा इनकम इन every and each year हमारे इधर पे प्रोग्राम होता है, बहुत सारे इन्वायरमेंटल ट्रीटीज होते हैं जो डिस्कस होते हैं, जिनको डिस्कस करके बहुत कुछ बनाया जाता है. ठीक है, तो इसके बाद अब यहाँ पे हाइड्रोजन
अभी हाइड्रोजन फ्यूल का कॉन्सेप्ट आ गया है, रिसर्च इनटू हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स टू पावर बसेस एंड कार्स, ये सब आ गया है, इन सब कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, ठीक है। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिवर डैम्स एंड वॉल्केनोज, एनुअल रेनफॉल इतना है, कोस्टा रिका की बात हम करते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो एग्जांपल, 99% of the electricity is from the renewable, but 17% of the energy consumption is Costa Rica is from the sun, which turns on the petroleum, ठीक है। You should just know about this कि क्या है और इन renewable sources का कैसे यूज किया जा रहा है वर्ल्ड में, ठीक है। इसीलिए वहां पे जहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेस का इतना ज्यादा यूज किया जाता है, वहां की बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच होती है, वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी। अभी देखो टोटल लॉकडाउन बैन लग गया था, तो इन्वायरमेंट ने अपने आप को कितनी जल्दी रीजनरेट किया था, बहुत जल्दी से रीजनरेट कर लिया था, बट नाउ अभी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। Brazil is the second largest producer of the bioethanol after USA. Okay, so let us come on your question, then I will go ahead with the nuclear resources and हाँ, एक मिनट आपका क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। Wait, I am taking your question and answer. Okay. वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा रहे हैं। हाँ, जब आप क्लास ज्वाइन करते हो तो आप देख लिया करो कि नेचुरल रिसोर्सेज वहां लिखा रहता है, यूनिट 3 नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ठीक है, हर्ष मैं जियोथर्मल एनर्जी को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए, एक बार मैं करता हूँ। सर सपना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पिछली क्लास में बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ था। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड again and again and reproduce can be reproduced again and again, okay। ऐसे रिसोर्सेज को जिसको हम फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और एनर्जी को फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमारा रिन्यूएबल होता है। नॉन रिन्यूएबल मींस द एनर्जी व्हिच कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन लाइक फॉसिल फ्यूल एक्सेट्रा, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हम फिर से रीजनरेट कर रहे हैं, तो वो हमारा रिन्यूएबल सोर्स है, जो कि अभी मैं बता रहा था, ठीक है। या जियोथर्मल। हाँ, बुक को कवर करते हुए आपके सिलेबस को कवर किया जा रहा है, ठीक है। बुक को कवर करते हुए आपको सिलेबस को कवर किया जा रहा है। आपके सिलेबस में है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल है, जियोथर्मल एनर्जी भी है, ठीक है। तो उसके बाद फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, लैंड रिसोर्सेज है, जिसके बारे में आपको बताया गया था, ठीक है। और जो अभी रिमेनिंग पार्ट है वो बताया जाएगा। गीगावाट, हाँ, बायोइथेनॉल। बायोइथेनॉल वो है हमारा जो कि जैसे शुगर केन है, शुगर केन को का फर्मेंटेशन करके जो इथेनॉल बनाया जाता है वो हमारा बायोइथेनॉल होता है, ठीक है। या फिर हम जेट्रोफा की बात करें, जेट्रोफा के जो सीड्स होते हैं, साक्षी, जो हम जेट्रोफा के सीड्स को निकालते हैं, उन सीड्स से जो रिप्रोड्यूस किया जाता है, उसकी से जो ऑयल होता है, उससे हम अपनी गाड़ियां वगैरह चलाते हैं, वो भी एक बायोइथेनॉल ही है। We are talking about Madhuri, देखो, we are talking about the developed countries, not for the UK. For the developed countries, we are talking about Germany, Costa Rica, Iceland, because they are using a lot of these kind of resources. In India, if we talk, only few examples are there, okay। बहुत कम एग्जांपल्स हैं। आप गूगल करो कितना ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में है, देयर आर फ्यू एग्जांपल। बट इफ अगर आप एस्टिमेट करते हैं कि जो फॉरेन की कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा करती हैं, कितने कितने परसेंट, 90% दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बट फॉर इंडिया इफ यू गूगल इट, वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ वी आर, हम जितना भी डिपेंड करते हैं नॉन रिन्यूएबल के ऊपर, वो बहुत कम है। नॉन रिन्यूएबल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। प्रीति, देयर इज नो ग्रुप ऑफ ईवीएस। मैं एडमिन को आपकी बात रिक्वेस्ट में फ्लो करूंगा, बताऊंगा, अगर वो अलाउ करते हैं सर फॉर्म ग्रुप। वरुण भंडारी, कोई पीडीएफ नहीं है आपको, जो बुक्स एसएल प्रोवाइडेड है, अगर नहीं प्रोवाइडेड है तो एसएल की साइट पे भी एक दिया हुआ रहता है, बुक्स ऑलरेडी डाउनलोडेड है, यू कैन सी दैट दीज बुक्स, और आप वहां से
डायरेक्टली भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बुक की बात करते हैं, इराक बलूचा की एक बुक है जो कि फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, जस्ट गूगल इट, इराक बलूचा पीडीएफ इन इंग्लिश, आपको इमीडिएटली मिल जाएगी उसमें भी। बट आप जो भी प्रिपरेशन करेंगे वो आप सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। हाँ, एसओएल की जो बुक मिली है उसमें पूरा पूरा कवर किया गया है, ठीक है। एसओएल की जो बुक मिली है उसमें पूरा का पूरा आपका कवर किया गया है, ठीक है। समझ व्हाट होता है रिन्यूएबल सोर्सेस, ठीक है। जियोथर्मल को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अभी और भी है रिन्यूएबल विद इन द टाइम, हमको लिमिट में हमको रिन्यूएबल सोर्सेज में अभी और भी कुछ रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में भी अभी आपको बताना है, ठीक है। ओके, सो लेट अस कम ऑन द स्लाइड अगेन, गेट You can see here 19% of the new cars of the flex fuel। हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का बात आ रहा है या सीएनजी व्हीकल्स की बात आ रही है, तो हम लोग खरीद रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट आर गिविंग सम सब्सिडी ऑन दैट। अगर हम 10 लाख की कार को खरीदते हैं तो उसमें 1.5 लाख हमारा छूट मिलता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट अ लॉट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड एंड ऑपरेटेड व्हीकल आर द इथेनॉल ऑपरेटेड व्हीकल आर द सीएनजी ऑपरेटेड व्हीकल। वो टाइम में धीमे धीमे करके आएगा, ठीक है। अभी हम इंडिया की बात करें, किसी ने बोला कि आप का एग्जांपल क्यों ले रहे हो। इंडिया में जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का बात करते हैं, हम अभी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं और हमको यहाँ से हमको जाना है, सपोज हमको लेह लद्दाख जाना है, कितने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब कितनी जगह पे हमको इलेक्ट्रिसिटी का जो भी चार्जिंग है वो है, पावर स्टेशन मिलेगा, कुछ ही जगह पे मिलता है, ठीक है। बट पेट्रोल तो फ्रिक्वेंटली हर जगह अवेलेबल है, तो ये रीजन है कि पेट्रोल और डीजल हर जगह फ्रिक्वेंटली अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सीएनजी हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाता है, इसलिए लोग पेट्रोल और डीजल को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, आज से 10 साल, आज से 20 साल 25 साल के बाद हम देखेंगे मैक्सिमम जो ऑपरेटेड व्हीकल होगा या तो सीएनजी होगा या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जुड़े हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द योर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अभी मैं ले रहा हूँ आपका जियोथर्मल एनर्जी लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। इन द नेक्स्ट स्लाइड आई एम टेकिंग अबाउट द जियोथर्मल एनर्जी। वेट, यूनिट थी नेचुरल रिसोर्सेज, नहीं अभी हम अच्छा आपका जियोथर्मल बताना था, किसी ने पूछा है जियोथर्मल के लिए। वेट वेट वेट, पहले मैं जियोथर्मल ही आपको बता देता हूँ, फिर चलते हैं आगे, है ना। वेट वेट वेट, let me take about the geothermal energy. आगे wind, solar, geothermal. Just see in the slide. Okay. जियोथर्मल एनर्जी बेसिकली जो इसका कॉन्सेप्ट है कि वॉल्केनो के अगल बगल के एरिया में जहाँ पे हॉट रॉक्स होती हैं, जरूरी नहीं है कि वॉल्केनो हो, वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है, वहाँ पे नहीं भी हो सकता है, बट वो एरिया बहुत ही गर्म रहता है, हॉट रहता है उसका सरफेस, ड्यू टू द वहाँ का जो कोर से मेंटल से लेके जो ऊपर का क्रस्ट है वहां तक थोड़ा सा ओपन होता है, होल होता है, उसकी वजह से, या फिर वहां पे कुछ नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से वहां की सॉइल गर्म रहती है। वॉल्केनिक इरप्शन के बगल में ही जियोथर्मल एनर्जी मैक्सिमम प्रोड्यूस किया जा सकता है। यहाँ पे देखो, फिगर में देखो, समझ में आ जाएगा। वॉल्केनो इज देयर and due to volcano the soil is very hot and rocks are also very hot. Okay, so the cool water is inserted here where water is heated due to the heat of the rocks. Water is heated due to the heat of the rocks because rocks are very warm due to volcanic eruption, ठीक है। तो यहाँ पे जो रॉक्स होंगी वो बहुत गर्म होंगी, उसकी वजह से वाटर गर्म होगा, वाटर जब गर्म होगा तो वो स्टीम बन जाएगा, और स्टीम जब यहाँ पे आएगा तो टरबाइन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, ठीक है। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेट्स गो अहेड। हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की हम बात करेंगे, हाउ द न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी how to produce nuclear energy, types of nuclear power plants, environmental effect, advantages nuclear power, ठीक है। फर्स्ट थिंग जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं, काइंडली नोट डाउन, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड बाय टू प्रोसेसेस, वन इज न्यूक्लियर फिजन, अनदर इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, जल्दी
तो करो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, you just know about the little bit what is the concept. Nuclear fission works by splitting of atoms apart to produce smaller atoms. Okay, this is the basic funda of the nuclear fission. और इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. All of you know that in Hiroshima and Nagasaki न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट किया गया था वहां पे. ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी में. ड्यू टू दैट बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस हुआ. और यू कैन, there are so many videos uploaded on YouTube. You can see how much amount and in a big amount that energy generated. ठीक है, how to produce nuclear energy, how a nuclear reactor works. Okay, ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं जाना. फ्यूजन देखना है हमको. व्हाट इज द फ्यूजन, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूजन. मैं आपको इसके बाद लैंड और वाटर, लैंड और फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी बताऊंगा. ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा. कुछ बच्चे पूछ रहे हैं. ठीक है, फ्यूजन में स्प्लिट होता है, फिशन में होता है, फ्यूजन में कंबाइंड होता है. ठीक है, तो जस्ट नो अबाउट द टू concept, how the nuclear energy will be is produced. Okay, see here, there are some harmful and positive effect of the nuclear energy. ठीक है, as you know, maybe आप लोगों को पता होगा कि all the nuclear substances produce alpha, beta and gamma rays. These kind of rays are continuously emitted by the nuclear substances and these are radioactive waves. आप गए हैं एक्सरे कराने, वहां पे अल्फा बीटा गामा रेज में से कुछ रेज को बहुत ही लेस क्वांटिटी में इमिट करके आपका एक्सरे होता है. सो दिस काइंड ऑफ रेज इज वेरी डिजास्टरस. मतलब अगर इनको हैवी अमाउंट में प्रोड्यूस किया गया तो वो बहुत ही इफेक्ट डालती है. इवन इन हिरोशिमा एंड नागासाकी आफ्टर मेनी ईयर्स उधर पे जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो हियरिंग, मतलब कहीं उनको सुनाई नहीं दे रहा है, कहीं आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, इतना इम्पैक्ट आ गया है. दिस काइंड ऑफ रेज कैन अफेक्ट आवर जीन्स आल्सो. हमारा जो जीन्स होता है ना, तो जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट डालते हैं. ठीक है, तो यहाँ भी एक और कॉन्सेप्ट आया कि जो न्यूक्लियर माइंस में वर्क करते हैं, द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन द न्यूक्लियर माइंस फेस ऑक्यूपेशनल हजार्ड. ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होता है कि जो वहां पे वर्क करते हैं, न्यूक्लियर सब्सटेंसेस को निकाल रहे हैं, उनके ऊपर भी अल्फा बीटा, या श्योर डेफिनेटली दे यूज सो मेनी प्रिकॉशंस. ठीक है, बट फिर भी तो पड़ रहा है. आप कितना भी उस बच के कितना भी प्रिकॉशन लेके बॉडी पे सब कुछ पहन के चलो, बट इफेक्ट डालता ही डालता है. ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी या न्यूक्लियर पावर के साथ. ठीक है, इंडिया में बहुत सारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाए गए, वो आप गूगल करते ही इमीडिएटली आपको मिल जाएगा. ठीक है, here the advantage of यूरेनियम को हम बेसिकली यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में. ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ये रिन्यूएबल नहीं है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. ठीक है, बट हम इसको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में क्यों देख रहे हैं? व्हाई वी आर लुकिंग फॉर दिस? because the small substance of this nuclear material can produce a lot amount of energy. थोड़ा सा हम यूज करके बहुत ज्यादा अमाउंट में हम एनर्जी जनरेट कर लेते हैं. That's why government is looking this kind of energy source as an alternative source of energy to meet our future needs. क्योंकि फ्यूचर में हमारे पास फॉसिल फ्यूल कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगा. वर्ल्ड वाइड बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेटेड हैं. ठीक है, ठीक, कुछ रेफरेंसेस हैं जहां से इस सोर्स को लिया गया है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल मैंने केवल एक ही लिया है, वो है हमारा. ठीक है, अब हम आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे. नो वेट स्टूडेंट्स, फिर से हम आते हैं अपने प्रीवियस स्लाइड पे. अल्टरनेटिव सोर्सेज हो गए, यूनिट 3.
पिछले क्लास में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल के बारे में फुल्ली डिस्कस हो चुका था, ठीक है। ये सब डिस्कस हमने किया था। आज मैंने इसके बारे में बता दिया, सोलर क्या है, विंड क्या है, जियोथर्मल क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, बायोमास सेट वो पावर क्या है, ठीक है। अब फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में डोंट बी कंफ्यूज, हो सकता है मैंने पिछली क्लास में कुछ बता, इकोसिस्टम में भी आपको फॉरेस्ट रिसोर्सेज बताया गया था, लैंड रिसोर्सेज बताया गया था, वाटर रिसोर्सेज बताया गया था, लेकिन वहां पे मैंने टाइप्स बताया था, ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज बताया था, कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, डिकम्पोजर क्या होता है। बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल ऑल दीज डिटेल्स, आई एम ओनली show you what are the forest resources and some of the resources available and what kind of energy requirement they are producing for us and in India. Okay, so forest resources जैसा कि ये पिछली क्लास में भी बताया गया था इकोसिस्टम में कि कितने परसेंट है, 33% ऑफ द टोटल वर्ल्ड में है, जिसमें 12% हमारे इंडिया में है। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज डे बाय डे डिप्लीट होते जा रहे हैं। ओके, हाँ, फॉरेस्ट रिसोर्सेज का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, दे प्रोड्यूस रेनफॉल। और जहाँ पे रहते हैं उनमें कैनोपी कवर बहुत ज्यादा होता है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो जाता है, उसके वजह से रेनफॉल होता है। दे रिड्यूस सॉइल इरोजन ड्यू टू सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी, द रूट्स कैन होल्ड द सॉइल ड्यू टू होल्डिंग कैपेसिटी। हाउ, जहाँ पे रूट रहेगा वो सॉइल को बाइंड करके रखेगा, तो उधर पे रेनफॉल होगा। देन बट रेनफॉल कैन नॉट अफेक्ट द सॉइल का जो वहाँ पे वेरिएशन है उस पर इफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। सॉइल इरोजन को बता लेता है। शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स, एज यू नो मेनी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ओके, improve the sanitary condition, where the neem tree, the botanical name is Agidirecta indica, where the neem tree is planted, बहुत सा बेनिफिट होता है, मॉस्किटोज नहीं आते क्योंकि बिकॉज वो कड़वा होता है, बिटर होता है, बिटर टेस्ट की वजह से। तो ये सब सैनिटरी कंडीशन कैसे इंप्रूव करता है, ठीक है। हाँ, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इट फैसिलिटेट्स ह्यूमन एग्जिस्टेंस बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज बेसिक एंड वेरी and most important thing. Okay, they provide employment, etc. Forest fire हो सकता है, forest fire every year in all over the world, fire exists in a very large amount. बहुत forest fire हर साल होता है, we cannot predict that. In the summer definitely कहीं ना कहीं forest fire होता ही है, ठीक है। क्या इफेक्ट है अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, डिप्लीशन ऑफ द ट्री करेंगे, राइज इन टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, वो टेम्परेचर बढ़ा देगा, इंक्रीज रेट ऑफ सॉइल इरोजन। मैं थोड़ा सा भी फास्ट चल रहा हूँ, सॉइल इरोजन को बढ़ा देगा, बिकॉज आपको फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फॉरेस्ट इकोसिस्टम बताया गया है, उसी का थोड़ा सा पार्ट है। वहां पे हम इकोसिस्टम की बात करते थे जब हम यूनिट 2 की बात करते थे, यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाउ टू कंजर्व द फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, दैट मीन्स प्लांटेशन ऑफ ट्रीज इज द बेसिक थिंग फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। डेवलपमेंट ग्रीन बेल्ट अराउंड सिटीज, हम अपने घर के बाहर या सिटी के बाहर एक डेवलपमेंट ग्रीन बेल्ट को डेवलप करते हैं। बहुत सारे सिटीज में जब आप एंटर करते हो तो देखते हो कि वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा होती है सिटी में एंटर करने में। वो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि सिटी के चारों तरफ प्लांट्स को लगाया जाए। प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, उसके लिए क्या किया गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाया गया है, बोटेनिकल गार्डन बनाया गया है। यू नो देयर इज अ बोटेनिकल गार्डन इन दिल्ली, यू कैन गो देयर एंड सी हाउ द प्लांट्स आर कंजर्व which are facing extinction kind of phenomena. Agroforestry means the forestry with agriculture. In the agricultural land, we can use, like in wheat and rice field, we can plant some bamboo plant. बम्बू का प्लांट होता है, फिर उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। Deforestation means cutting up the trees. Simply, deforestation means cutting up the trees. काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन मैंने बता दिया अभी, ठीक है। कंट्रोल ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, प्रॉपर रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए, कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है। ये सब एक मिनट आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। वेट some questions, somebody asking some question, wait करो, जियोथर्मल बता दिया मैंने। प्रीति, आपका जो क्वेश्चन है ये आपको एडमिन से करना पड़ेगा। हाँ, if you are following syllabus, then SOL books are enough.
व्हाट इज द टाइम नाउ 5:53 ओके वी हैव 17 मिनट्स तो आप उससे पढ़ सकते हैं ओके 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 मैं पास से बोलता हूँ ठीक है सपना ठीक है अच्छा ठीक है मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ ठीक है बुक का नाम है इराक बरूचा एनोनिमस बुक का नाम है इराक बरूचा इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंस डायरेक्टली जाओ ना आपको मिल जाएगा बारून भंडारी ये क्वेश्चन ये आपको लोगों का कमेंट दिया जाता है आप लोगों का शायद फेसबुक पेज भी क्रिएटेड है या कुछ ऐसा है एसओएल की तरफ से तो जो भी आपको करना है ना तो जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट मतलब ऑनलाइन ही सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है सो मे बी सम टीचर्स आर प्रोवाइडिंग समथिंग बट एज आई नो आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट जब तक हम मेरे को एडमिन से इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता सॉरी बिकॉज हमको एडमिन को फॉलो करके चलना है ठीक है चलो अब वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं ठीक है फॉरेस्ट के बारे में मैंने पिछली भी क्लास में बताया था इकोसिस्टम में भी बताया था वाटर की बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमको पता है कि ओनली 0.7 around 0.7% of the water is available for our daily need as a fresh water okay where 2.05% are fresh water of this amount is logged in the ice caps and glaciers ठीक है थोड़ा सा फास्ट चलूंगा काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड ठीक है ओनली लेस देन 2% 2.7% ही हमारा फ्रेश वाटर है जिसमें से 0.7% ही अवेलेबल है सो यू कैन थिंक हाउ less quantity of amount of water is present on earth surface for our daily needs हमको पता है पूरा अर्थ में 67% वाटर है लेकिन वो पीने के लिए नहीं है ठीक है अब यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज के साथ प्रॉब्लम क्या है बेसिकली ओवर यूटिलाइजेशन की प्रॉब्लम है we are over utilizing the water if we are going for the bath we can finish it in we are using 4 buckets so we are over utilizing this kind of water फ्रेश वाटर ही तो है ना हमारा टैप वाटर आ रहा है जो हमारे टैप से हमारे घर में आ रहा है ठीक है ओवर यूटिलाइजेशन तो हमको ये कम करना है एग्रीकल्चर बहुत पोल्यूट करता है वाटर को when the nitrogenous substances made for made as a fertilizer are used in the agricultural crops then some amount of fertilizer is absorbed by the plant to for their basic needs okay but some amount of excess fertilizer is left there and the left amount of excess fertilizer in the rainy season comes to the कहाँ जाता है बहते बहते वाटर में आ जाता है रिवर्स में आ जाता है पॉन्ड में and that the pond river ecosystem ठीक है तो एग्रीकल्चर यूज कर रहा है हमारे ड्यू टू एक्सेसिव जो भी फर्टिलाइजर को डाला जाता है इंडस्ट्री in every industry and any kind of industry basically use water for cooling purpose for their machinery cooling purpose को मशीनरी को यूज करने के लिए वो करता है ठीक है so these are the basic steps and basic points which are polluting surface and groundwater I hope समझ में आ गया होगा and behind this what is the basic problem our growing population if the population is increasing our demand is increasing if demand is increasing we need some more industries okay some more natural resources for the consumption okay so the pollution ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगा ठीक है अब देखो ये हो गया हमारा ओवर यूटिलाइजेशन एंड pollution of surface and groundwater समझ में आ गया होगा flood the if any area if any soil if any area is inundated with a heavy amount of water is called as a flood okay अब यहाँ पे देखो स्लाइड में deforestation is the main cause of flood that kills people damage crops destroy humans क्यों पानी आया किसी एरिया में वहां पे प्लांट्स नहीं है तो जो बाइंडिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो बहुत कम होगी तो वहां से फ्लो पानी फ्लो हो जाएगा सो दैट्स व्हाई फ्लड अकर इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द जो हमारा सी शोर पे हमेशा देखो जो प्लांट होते हैं वो बहुत कवर करते हैं सीज के पानी को डायरेक्टली इंटर होने से वो मैंग्रोव फॉरेस्ट बोला जाता है उनको ठीक है उसके बाद इन इंडिया एवरी ईयर flood hits a lot and many places
ठीक है, जैसे केरला में फ्लड आता है, बिहार में फ्लड आता है, उड़ीसा में फ्लड आता ही आता है इंडिया, बिकॉज वी कैन नॉट, मतलब हम बहुत ज्यादा उसके लिए भी टेक्निकली एडवांस नहीं है रोक सकने के लिए। ठीक है, ड्रॉट क्या होता है? एज वी नो रेन्स आर अनप्रेडिक्टेबल इन आवर द वर्ल्ड, वी कैन ओनली एज्यूम दैट, जैसे हमको पता था कि अभी 2 दिन पहले बारिश होगी, 2 दिन पहले बारिश नहीं हुआ, गूगल पे दिखा रहा था ड्यू टू IMD, जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, बारिश आज हुई, तो अनप्रेडिक्टेबल है, केवल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वी कैन प्रिडिक्ट दिस बाय यूजिंग wind flow, wind direction, etc., but we cannot estimate when the rain occurs. हम estimated amount वो नहीं बता सकते, केवल हम एक वो कर सकते हैं कि एक माइंड मेकअप कर सकते हैं कि हाँ विंड का डायरेक्शन ये है, तो और ये क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो बारिश यहाँ पे होगी। सबसे ज्यादा जो अफेक्ट है वो थार डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है, ये सब एरिया बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। ठीक है, in most of the regions of the world, the rains are unpredictable. This leads to periods when there is a serious scarcity of water. ये सब होता है। ठीक है, late 2025 में you can see the India projected water scarcity, बहुत ज्यादा water scarcity होने वाली है। Okay, so with the water kind of thing, water management का concept आ जाता है कि how to manage the water, एक मिनट प्रीति, ये डिस्कस हुआ था लेकिन कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस। वेट, अच्छा इसमें ये भी कंफ्यूज मत होना, इकोसिस्टम में भी हमने ये बहुत डिस्कस किया है, इकोसिस्टम वाली क्लास में भी डिस्कस हुआ था, लेकिन वहां पे कैसे डिस्कस हुआ था? वहां पे डिस्कस हुआ था वाटर रिसोर्स इकोसिस्टम के फॉर्म में, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वाटर मैनेजमेंट के फॉर्म में। ठीक है, अब हमको क्या क्या करना है, मेन पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करो जो लोग कर रहे हो। पहला है रूफ वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं वाटर कंजर्वेशन में, ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक्सेट्रा, वहां पे कर सकते हैं। इन एवरी सिटी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट plants are established for the treatment of all domestic water, where all the domestic waters, सारे डोमेस्टिक वाटर को, घरेलू जो हमारा वो होता है वाटर होता है गंदा, उसको लिया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पज। देयर आर बिग ट्रीटमेंट प्रोसेस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट द सर्टेन पैरामीटर्स आर चेक एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसको वाटर को यूज किया जाता है। ठीक है, फिर मिनरल रिसोर्सेज की हम बात करते हैं। मिनरल्स इंडिया में बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। मिनरल रिसोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, देयर आर 2 काइंड ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, वन इज मेटेलिक एंड अदर इज नॉन मेटेलिक रिसोर्सेज। दिस इज द बेसिक ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज। ठीक, मेटेलिक होगा, नॉन मेटेलिक रिसोर्सेज होगा। गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ऑल दीज आर मिनरल्स। ओके, फिर कैसे किया जाता है? माइनिंग से किया जाता है। माइनिंग 2 टाइप की होती है, सरफेस एंड सब सरफेस, जस्ट सी इन द स्लाइड। Surface mining, underground mining, 2 kind of mining activities are used. इसमें से कुछ स्लाइड्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो बच्चे बोल रहे हैं राइट, मैं बता चुका हूँ इसमें से कुछ स्लाइड, वो भी डिस्कस किया जाएगा आपको। ठीक है, जो मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं उनके लिए है ये स्लाइड, मतलब जिनको नहीं समझ में आया था। एनर्जी रिसोर्सेज ये मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में, इन डिटेल मैंने बता दिया था रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। लैंड रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। Around 29% of the earth, 29% of the earth is solid part, that is called as a lithosphere। ठीक है, lithosphere ही हमारा लैंड रिसोर्सेज है, जिसमें क्या क्या आते हैं? हिल्स, वैलीज, प्लेन्स, रिवर बेसिन, वेटलैंड। 29% क्यों है? 71% हमारा वाटर है ना, 71% is covered with the water, मे बी रिवर का हो गया, ओशियंस का हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Man needs land for building homes, cultivating food, developing industries, for providing goods, and for creating towns and cities. ठीक है, लैंड रिसोर्सेज में हमारा ये सब आता है, पहले ये क्लियर कर लो। हिल्स आते हैं, वैलीज आते हैं, प्लेन्स आते हैं, रिवर बेसिन्स आते हैं, वेटलैंड्स आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
स्टूडेंट एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप सब लोगों से, आप लोगों की कोई क्लास है या नहीं है? अगर आपकी क्लास नहीं है तो मैं थोड़ा सा और टाइम लूंगा आप लोगों का, तो पहले मैं इसका आंसर आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बता दो, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ कुछ और पॉइंट्स। हाँ प्रीति, ये डिस्कस हो गया है, आप बता दो मेरे को, यहाँ पे लिख के बता दो कि आपकी क्लास है या नहीं है इसके बाद। कैन आई टेक 10 to 15 minutes more? Students kindly type. चलो अच्छा, ये मैं वो कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट बताया कि क्लास है आप लोग अभी। नेक्स्ट क्लास कब है आपकी? है 4 to 5 क्लासेस हैं आपकी। चलो मैं ये डिस्कस कर ही रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरे को बता देना काइंडली, ठीक है। हाँ, लैंड रिसोर्सेज के बारे में बताते हैं, ठीक है। हाँ प्रीति, हाँ डिस्कस हुआ था लेकिन कुछ क्वेश्चन है इसलिए कुछ बच्चों को बताना पड़ रहा है, ठीक है। लैंड रिसोर्सेज क्या है बेसिकली, ठीक है। लैंड हमारी रिन्यूएबल रिसोर्स है, एट अगर वो बंजर हो जाती है तो वो नॉन रिन्यूएबल होती है। लैंड डिग्रेडेशन क्या है, जैसा मैंने पहले बताया, लैंड इरोजन कब होता है? लैंड इरोजन इज आल्सो कंसीडर्ड एज वन काइंड ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। प्लांट को कट कर दिया, सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो गई, एज अर्बन सेंटर्स ग्रो एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन एग्रीकल्चर लैंड एंड फॉरेस्ट सिंक्स, ओके। So this is a serious loss and long-term effect of the human civilization also. रोल क्या है, इंडिविजुअल रोल क्या है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए? अब इंडिविजुअल रोल क्या है? nobody is saying anything. Message is coming, only 5 minutes left for the scheduled meeting. Okay, हाँ चलो ठीक है, ठीक है, फिर हम आपको ये बताते हैं। इंडिविजुअल रोल में देखो, 21 मार्च को हम फॉरेस्ट डे मनाते हैं। फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, लिख लो 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे। अब पहला था इंडिविजुअल रोल इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इंडिविजुअल रोल क्या होता है? प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा डू द प्लांटेशन मोर एंड मोर इन योर लोकेलिटी, इन योर एरिया, इन योर गार्डन, इन योर सिटी, वेयर एवर यू वांट। यू कैन पार्टिसिपेट इन अ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोग्राम विद एनजीओ, और वहां पे भी बहुत कुछ कर सकते हो। वाटर के लिए क्या करते हो? नॉट कीपिंग वाटर टैप्स रनिंग, चेक वाटर लीक एंड रिपेयर, अडॉप्ट मिनिमम वाटर यूज पैटर्न्स, जैसे ड्रिप इरिगेशन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन में आई होप आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब भी अपने गार्डन में जाते हो, वहाँ पे स्प्रिंकलर लगा होता है जो राउंड राउंड करके मूव करता है, उससे वाटर की ड्रॉपलेट निकलती है, वाटर, ओके। बिस्किट्स हम उधर पे पानी पूरा फ्लो कर देते हैं, वो हमको फायदा नहीं करता, बट जब एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर निकलता है दैट इज वेरी यूजफुल, ओके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, we can collect rainwater on our rooftop and through the pipes it can be stored in large tanks. राजस्थान के एरिया में वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है बिकॉज वो वाटर स्कैर्स रीजन है। इंडिविजुअल रोल्स इन कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। Minimize the use of minerals which are likely to be adopted. Recycle and reuse minerals and glasses. Buy durable product that last long. Buy efficient vehicle. Repair and reuse bicycle. Repair and reuse का जो concept है, recycle and reuse का जो concept है कि किसी भी चीज को हम recycle करते हैं फिर reuse करते हैं, ठीक है।
फूड में हमको ज्यादा नहीं है ना, फूड इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, मतलब रोल ऑफ एनर्जी, हाँ एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Some of the measures are turn off lights, fans, or other electric appliances when not in use. As you know, in every year there is a World Water Saving, World Energy Saving Day. इधर पे सेलिब्रेट किया जाता है, उधर पे होता है कि पूरे वर्ल्ड की लाइट बंद रहेगी और बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें सेव होती है। रिप्लेसिंग ट्यूबलाइट्स विद द CFL एंड LED, मतलब 5 मिनट्स के लिए आप लाइट बंद करते हो पूरे इंडिया की या पूरे वर्ल्ड की, तो उस टाइम पे बहुत सारा लाइट सेव होता है। Construct building in such a way that maximum amount of sunlight can be obtained. Try to dry clothes in sunlight instead of dryer in washing machine. मतलब हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को हम बचा सकते हैं using solar cooker. As I told you earlier कि solar energy is a good source of energy and we can use it for the electricity as well as for cooking food etc. Buying energy efficient appliances. जैसे पहले में जो बल्ब आते थे फिलामेंट के होते थे, अभी LED का कॉन्सेप्ट आ गया, अब CFL, मतलब डिफरेंट वो एनर्जी सेविंग पैटर्न्स हमारा गवर्नमेंट भी इनिशिएट करता रहता है। मिनिमाइज यूज ऑफ ऑटोमोबाइल बाय यूजिंग बाइसिकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपूलिंग एटसेट्रा। ओके, December 14 is celebrated as a World Water Energy Conservation Day, ठीक है। So this is all about your the natural resources क्या है, what is the basic difference in between renewable and non-renewable resource, and what are the alternative sources of energy resources available, and some of the renewable resources we discussed in detail like wind power, hydropower, solar energy, geothermal energy, etc., and biomass energy. Okay, some of the main energy resources and natural resources we also discussed like forest resources, land resources, energy resources, and water resources, etc. So this is all about your the syllabus. जो आपका syllabus है वो पूरा cover हो गया, ठीक है। This is your unit. Okay. Okay, so I am not able to see any question answer here. ठीक है, किसी का कोई confusion हो तो आप मेरे से पूछो। Kindly write here. 3:44 का लास्ट मैसेज है, उसके बाद कोई भी क्वेरी नहीं है। So can I close the class? सर एंड करोगे सर क्लास? हाँ सर एंड कर दीजिए क्लास को। थैंक यू सर, थैंक यू।